चलो देखते हैं क्या होता है ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। ये जो मेट्री है, मेट्री करेस्पॉन्ड्स टू मेजरमेंट। मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, कैलोरीमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ थिंग्स। ओके, एंड व्हेन यू से इट इज ट्रिगोनोमेट्री, just like polygon, suppose you say hexagon means a region having 6 bounded surfaces. No, polygon means having many bounded surfaces. Trigon means having 3 surfaces, which you otherwise call as triangle. Okay, it is all measurements related to triangle. Basically, you know the Pythagoras theorem. What is that? If this is what is a triangle, right angle triangle, I say suppose this is what is the base, this is the perpendicular, and this is the hypotenuse. Okay, then they are related by the relation. ठीक है, क्या relation है? We know it. क्या है? h square is equal to क्या है? टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इसका प्रूफ आपको आता है? यस सर, आता है। वेरी गुड। सो आई विल नॉट फोकस ऑन दिस, ये आपको आता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये एच पी बी में हम वेरियस रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक एंगल को थीटा लिया जाता है। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इस एंगल के साथ यू सी अनदर एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, मैं ये एंगल को थीटा लिया। एंगल के साथ अटैच 2 साइड से, एक छोटा साइड है, एक बड़ा साइड है। छोटा साइड को कहेंगे बेस, बड़ा साइड को कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या हुआ? स्मॉलर साइड एसोसिएटेड with referred angle theta is called base। तो बेस क्या है आपको समझ में आ गया। एक बेस समझ में आ गया तो उसको जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर हो गया, और दूसरा लंबा साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ये समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। Here we define some trigonometric terms. Side ratios, ratio of sides, ratio of sides कैसे देखेंगे? हम कहेंगे sin theta, sin theta we write like this, sin theta means it is the perpendicular by the hypotenuse। अब ये एंगल अगर ज्यादा होगा तो P ज्यादा होगा, है कि नहीं? एंगल कम होगा तो पी, मान लो कि छोटा सा एंगल लेंगे, इसे लेंगे तो पी कम हो जाएगा। सो ये एंगल के ऊपर डिपेंड करके ये रेशियो आता है। क्या आता है? पी एंड एच का रेशियो। द रेशियो ऑफ पी टू एच इज कॉल्ड साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा किसको कहते हैं? द रेशियो ऑफ बी टू एच। ये कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर्स आपको याद रखना पड़ेगा। एंड देयर इज another term tan theta which is P by B। कोई अगर पूछेगा what is tan theta, so you find this length, find this length, find the ratio, that is tan theta। What is sin theta, find this length, find this length, ratio sin theta। So these are all trigonometric terms, sin theta, cos theta, tan theta। There are several other terms like cosec theta, the reciprocal of this, sec theta, reciprocal of this, cot theta, reciprocal of this। We are not going to that now, we are seeing only 3 terms now। If you have understood, can you help me finding, suppose I say here is a triangle and say this angle is 90 degree, say this length is 3, this length is 4, and suppose I say this angle is theta, and obviously this is 3, this is 4, this will be 3 square plus 4 square whole root over, that is 5. Can you tell me in this triangle what is base and what is the perpendicular
And what is the hypotenuse? What is base here? The angle theta. This is the referred angle. There are two sides associated with this. Smaller side is called base. So base will be taken as 3. The side which is perpendicular to the base is called perpendicular. So that is of length 4. Hypotenuse is coming 5. So these are the values we are getting. Once you are able to recognize the values of 3, 4, 5 as P, B, H, then you can say, suppose someone asks you, in this triangle, what is sin theta? You will say, so simple, P by H means 4 by 5. What is cos theta? Cos theta is B by H. 5. Yes, cos theta is 3 by 5. Like that. Tan theta will be equal to P by B, that is 4 by 3, like this. Suppose I change the data, I go for the same question, but I designate this angle as alpha, another angle alpha, है ना? तो corresponding to above angle, corresponding to above figure, आप क्या कहोगे? क्या बता सकते हो sin alpha क्या होगा? Now I am trying to skip and jump. Sin alpha, when I am finding sin alpha, what will be the base? I know the formula is P by H. If I am finding sin alpha, means this is my angle now. This is the smaller side. Yes, this is now the base. This is now the perpendicular. P by H means it becomes 3 by 5. Cos alpha is B by H. Now again you see, you are finding cos alpha. This is to be treated as base. This is hypotenuse. So it is 4 by 5. है ना? Tan alpha is coming out to be how much? P by B. So this is alpha. So this will be perpendicular. This will be base. 3 by 4. P by B is 3 by 4. Like this. Whenever an angle is mentioned, you can recognize different sides as P, B and H. You can find the values of sin theta, cos theta, tan theta. डिफिकल्ट तो है नहीं, बहुत सिंपल है. ठीक है, चलिए इसको मैं आपको भेज देता हूं, फिर आगे देखेंगे. So here I would like to repeat for the recording sake. I am repeating again. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर थीटा वेरी कर रहा है 0 से 90 डिग्री तक और हम वेरिएशन देखना चाह रहे हैं cos थीटा का. I draw a triangle like this. I assume this angle is x, this angle is y. ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि y इज मोर देन x, y इज मोर देन x, और मुझे अभी cos x cos y का वैल्यू निकालना है. अगर मुझे cos x का वैल्यू निकालना है, आई लुक एट दिस राइट एंगल ट्रायंगल ACB. cos x निकाल रहे हैं, x एंगल के साथ एसोसिएटेड दो साइड है, एक स्मॉलर साइड, एक लार्जर साइड. लार्जर साइड इज हाइपोटेन्यूज, स्मॉलर साइड इज बेस. तो cos x क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज. ये हो गया AB, हाइपोटेन्यूज हो गया AC, AB by AC. cos y क्या हो गया? cos y, I'm repeating everything again. cos y क्या हो गया? You have to look at this triangle. Now in this bigger triangle, AB will be the base and AD will be the hypotenuse. So cos y क्या हो जाएगा? B by H. तो it is coming AB by AD. और हम क्लियरली देख रहे हैं कि AC is lesser than AD. ये बड़ा दिख रहा है. AD is more than AC. और क्या नोटिस कर रहे हैं? अगर ये दोनों को देखेंगे तो जिसका दोनों का न्यूमरेटर बराबर है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है वो क्वांटिटी छोटा पड़ जाएगा. इफ यू गो फॉर 7 by 12 एंड 7 by 25 तो आप कहोगे ये दोनों बराबर न्यूमरेटर होने से क्या हो गया? इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये क्वांटिटी छोटा पड़ जाएगा. तो obviously like that you will see AD is more than AC, so cos y is less than cos x. तो क्या कंक्लूजन मिला? छोटे एंगल के लिए cos थीटा का वैल्यू ज्यादा था, बड़े एंगल के लिए cos थीटा का वैल्यू कम होने लगा. So what we observe here, thus with increase in angle theta, the value of cos theta decreases. और उससे हमें ये भी समझ में आ गया, एग्जाम्पल ले ली, cos 27 is more than cos 37 degree. Okay. Yes sir. Now variation of
साइन थीटा, वेरिएशन ऑफ साइन थीटा देखेंगे। चलिए इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हम एक ट्रायंगल ले लिया, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हम लेते हैं, ऐसा एक ट्रायंगल और ऐसा एक ट्रायंगल, ठीक है। नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को नाम देते हैं ए बी सी डी। सपोज दिस एंगल इज एक्स एंड दिस एंगल इज वाई। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कौन सा एंगल बड़ा है यहाँ पर, देखो तो हियर विच एंगल इज मोर। ऑब्वियसली जितने पास करेंगे उतना बड़ा एंगल होगा ना, जितना दूर को करेंगे उतना छोटा एंगल होगा। सो यू से x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये बात है तो चलो निकालते हैं व्हाट इज साइन x। रेशियो ऑफ साइड्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, p बाई h ऐसे होता था। p बाई h है तो ये ट्रायंगल में देखिए, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, BD। सो यू से इट इज BC बाय BD। इफ यू गो फॉर साइन y, व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, साइन y अगर आप देखोगे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल को देखोगे, ये पूरा चीज हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, है ना। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है मतलब P कितना है, BC, और हाइपोटेन्यूज इज कमिंग AB। अगेन ए सिमिलर कंपैरेबल थिंग हैज कम। हम देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, we clearly see BD और AB में से again AB is greater than BD। AB काफी लंबा है, BD छोटा है, AB is greater than BD। और देखो they are in the denominators, दोनों का न्यूमरेटर बराबर है। BD छोटा है तो sin x बड़ा है, AB बड़ा है तो sin y छोटा है। तो क्या पता चला, sin x is greater than sin y। What we observe, when x is more than y, sin x is more than sin y। मतलब क्या कंक्लूजन मिला, thus with increase in theta, sin theta increases। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ कौन बड़ा है, साइन 27 डिग्री और साइन 35 डिग्री, तो आप कहोगे जब एंगल बड़ा होता है साइन थीटा बड़ा होता है, तो आई विल से दिस इज मोर देन दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। यस, तो अभी ये दोनों चीज जानने के बाद काफी कुछ काम हमारा निकल जाएंगे, ठीक है। यस, हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल, एंड यू नो दिस एंगल इज 90 डिग्री, साइड्स आर ऑलरेडी मेंशन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin square alpha and sin square theta। सॉल्यूशन, when I say sin alpha, I have to go for P by H, perpendicular by hypotenuse। Now when I am referring to this angle, base will be here, in this case P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। पहले बेस को लिखते हैं, अटैच द साइड, स्मॉलर साइड होता है बेस, बेस हो गया 3, P हो गया कितना, परपेंडिकुलर टू दैट 4, H हो गया कितना 5, तो P by H क्या हो गया 4 by 5। When I say about sin theta, I am referring to the angle here। Now what is the base, इस एंगल के साथ एसोसिएटेड स्मॉलर साइड that is 4, बिगर साइड that is 5, है ना, एंड ये जो परपेंडिकुलर साइड P that is 3। तो sin थीटा क्या होता है, अगेन P by H, क्या है ये 3 by 5। ओके, now sin square alpha plus sin square theta is equal to, sin square alpha कितना है, इसका स्क्वायर 4 by 5 का स्क्वायर प्लस sin square theta
3/5 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी 25, न्यूमरेटर में क्या आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9, इट इज 25 बाई 25, दैट इज 1। The statue of unity, unity आ गया ना, so the relation is coming out to be 25 by 25, that is 1. Yes, sir. Yes. Now let us go for the next question. थोड़ा सा समझ में आता है कि नहीं आता है, समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है विच इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ना, तो ठीक है। और ये ट्रायंगल में ये दिया गया है कि आप इस परपेंडिकुलर का हाइट निकालो, फाइंड द हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर ये लेंथ थीटा है, ठीक है, ये लेंथ थीटा है और ये दिया है से मान लो 10, ये साइड का लेंथ दिया हुआ है 10, for any triangle theta, any triangle ABC, find height BD, height BD in terms of L and theta, in terms of L and theta। ये कोई एक ट्रायंगल है, पूछा है बताओ ये हाइट BD कितना है, ये एंगल थीटा दिया है, तो बताओ ये BD का हाइट क्या होगा। कोई एक ट्रायंगल का हाइट पता करना है, क्योंकि बेस मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं ना। तो अगर कोई एक साइड लेंथ दिया है, AB का लेंथ क्या दिया है, लेंथ ऑफ AB इज गिवन L and you have to find out what is BD. What is BD? You have to find out. You have to find out BD in terms of L and theta. कैसे करेंगे? हमें तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मालूम है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मालूम है। कोई एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, काम बन जाएगा हमारा। हम कहेंगे, कैसे कहेंगे सॉल्यूशन में, considering ABD ट्रायंगल। अगर ABD ट्रायंगल को हम देखेंगे, ABD ट्रायंगल को हम देखेंगे तो for sin theta will be how much? It will be perpendicular by hypotenuse। अगर ABD ट्रायंगल को लेंगे, ये थीटा है तो this length will be base, this length will be base, है ना, दिस लेंथ विल बी बेस। अगर ये बेस है, उसको परपेंडिकुलर है BD, तो आपको हो गया परपेंडिकुलर हो गया BD और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AB, है ना। जबकि AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, और हम पूछा गया है BD। BD कैसे निकालेंगे, AB को इधर मल्टीप्लाई कर दो, AB sin थीटा, AB क्या था L, so it is L sin theta, the height is equal to L sin theta। Is that clear? Yes, sir. Yes, ये L sin थीटा हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसके ढेर सारे यूजेस देखेंगे और हमें ये समझ में आ गया है कि अच्छा, तीसरा क्वेश्चन में आप थोड़ा बताओ जो मैं बताया हूं, पुट ग्रेटर देन और लेस देन साइन, साइन 14 डिग्री, साइन 20 डिग्री,
So sin cos 27 degree, yes, is yes, taken. cos 27 degree, cos 37 degree, sin 50 degree, ओके, sin 13 डिग्री। आपको वैल्यूज डालना है, ग्रेटर सिंबल्स डालना है यहाँ पर। पहला वाला क्या होगा, दूसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला क्या होगा। क्या जानकारी हमारे पास है, एंगल थीटा बढ़ने से साइन थीटा बढ़ जाता है, एंगल थीटा बढ़ने से साइन थीटा बढ़ जाता है कि नहीं। और तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, पहला वाले में आंसर क्या हो जाएगा, ये एंगल बड़ा है, सो दिस इज मोर। Yes, sir. Sin 20 कॉस में उल्टा होता है, बड़ा एंगल छोटा वैल्यू, cos 37 will be less than this। इस केस में ये 50 डिग्री है, ये 13 डिग्री है, बड़ा एंगल साइन है तो साइन में इंक्रीज करता है। Yes, sir. हाँ, हो सकता है कि काफी समय के बाद हम लोग भूल जाएंगे किस में इंक्रीज करेगा किस में डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज में एक इन आता है तो साइन में इन है, एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा। डिक्रीज में एक सी आता है, एंगल बढ़ेगा तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा। ऐसे करके आप याद रखना, ठीक है। ये सारा चीज अभी हम लोग समझ के और भी ढेर सारे रिलेशन अभी देखेंगे। सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मींस sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, वो सब अभी तो हम लोग तीन चीज देखें, sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा। तो इन रेशियो के बीच में रिलेशन देखेंगे। पहला रिलेशन आप देखे हो कि sin थीटा वाज p by h, cos थीटा वाज b by h, और हमारा tan थीटा जिसको अभी तक हम लोग यूज नहीं किए दैट इज p by b। थोड़ा अगर आप देखोगे ये जो tan थीटा है p by b है, इसको आप लिख सकते हो p by h इंटू h by b, h h कैंसिल हो जाएगा तो p by b आएगा। व्हाट इज p by h? p by h इज sin थीटा, b by h क्या है, cos थीटा, तो h by b will be 1 by cos थीटा। So you find very important relationship, tan theta is sin theta by cos theta। हाँ, ये चीज हमें समझ में आ गया, ठीक। दूसरा रिलेशन देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों में आपस में बहुत प्यार है। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जब भी मिलते हैं एक हो जाते हैं। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा p स्क्वायर बाई h स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे डिनोमिनेटर विल गो h स्क्वायर, न्यूमरेटर इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड यू नो व्हाट इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, it is same as h square, so h square by h square is 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि sin स्क्वायर थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप कहोगे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री 1, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 1। एनी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कुछ भी हो सके कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। फाइन। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखना चाहते हैं। अगर मैं कोई ऐसा ट्रायंगल लेता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ऐसा एक ट्रायंगल लेना चाहता हूं और चलो मानते हैं कि ये है हमारा ए बी सी और ये एंगल है अल्फा, सपोज ये एंगल है थीटा। चलो लिखते हैं साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा होगा p बाई एच, थीटा इज द रेफरेंस एंगल। तो साइड कौन सा साइड, छोटा साइड इसके साथ एसोसिएटेड है BC। नाउ BC हो गया तो ये हो गया परपेंडिकुलर और sin थीटा होता है p बाई h, इट कम्स आउट टू बी AB बाय AC।
करेक्ट, ठीक है। Yes. व्हाट अबाउट cos थीटा? cos थीटा क्या हो So ये b by h, b by h में क्या हो जाएगा? इट इज bc by ac, कोई दिक्कत नहीं। साइन अल्फा, साइन अल्फा को थोड़ा प्यार से देखो तो साइन अल्फा ये स्मॉलर साइड है AB, ये परपेंडिकुलर है, अल्फा ले रहे हैं इस एंगल को, सो इट विल बी P by H अगेन व्हिच इज BC by AC। एंड cos अल्फा जब अल्फा ले रहे हैं इसको लेंगे बेस, सो B by H क्या हो जाएगा? बेस हो गया AB, हाइपोटेन्यूज इज AC। व्हाट यू ऑब्जर्व हियर? You observe very interesting relations here. You could find that sin theta is coming same as cos alpha and cos theta is coming same as sin alpha. देखो अब sin theta is equal to sin alpha, ये जो मिला हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, हमें मिला sin theta is equal to cos alpha is equal to AB by AC, ये कंक्लूजन मिला। बट यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा? यू से अल्फा प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों साइड का सम 180 होता है। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या हो गया? इट इज 90 माइनस थीटा। तो फ्रॉम दिस व्हाट कंक्लूजन वी फाइंड? sin थीटा इज सेम एज cos 90 माइनस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। sin थीटा इज सेम एज cos 90 माइनस थीटा, मतलब sin 30 डिग्री का वैल्यू जितना होगा cos 60 डिग्री का वैल्यू उतना ही होगा, है ना। सिमिलरली इफ यू सी द अदर टू, cos थीटा इज sin अल्फा, अगर हम कहेंगे cos थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा और sin अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा, जो भी कहो, cos थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा यहाँ पर मिला, लेकिन अल्फा अगेन क्या हो गया? 90 माइनस थीटा, तो आप कहोगे cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा। कितना इजी है याद रखने के लिए। तो क्या मिला? sin थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा। दे आर very interesting relations and one has to remember these two are very important relations। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जाना जरूरी है, ठीक है। Yes, sir. For what value of theta? For what value of theta sin theta is equal to cos theta? Next question. Use greater than, less than, equal to sign. Sin 37, sin 15, cos 37, cos 15, sin 37, cos 15, cos 37, sin 15, ये सारा वैल्यूज आपको याद रखना है और आपको पूछना है, ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सिंबल कहां पर लगेंगे, है ना। ये इसको आपको करना है। नाउ यू ट्राई टू फाइंड आउट दिस वैल्यूज। Yes, sir. सो लेट मी सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 1। वी वांट टू सी हाउ इट इज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में इसको मैं दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन टू नंबर 1, पहला फर्स्ट मेथड। यू नो sin थीटा इज गिवन सेम एज cos थीटा, मतलब P by H is equal to B by H। Now look at a triangle where perpendicular and base both are equal. This seems P is equal to B, है ना। So it is a isosceles right angle triangle. P and B are equal. What will be this angle? Theta.
theta will be 45 degree. You clearly see it is coming out to be excuse me, theta is coming out to be 45 degree. Or second method, sin theta is cos theta, it is given. Furthermore, you know sin theta is same as cos 90 minus theta, is same as cos 90 minus theta. Cos 90 minus theta, sin theta is cos 90 minus theta, that is equal to cos theta. Cos 90 minus theta is cos theta. What it means? That is 90 minus theta is theta, means theta you take to this side, 2 theta is equal to 90, theta is 45 degree. So this way you could understand that theta is coming out to be 45 degree. Now in question number 2, solution number 2, let us see. सॉल्यूशन 2 में अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, इधर देखो तो Yes sir, so sin 37 is greater. See obviously ये थीटा with increasing theta, sin theta increases, so A में आंसर होगा sin 37 is greater than sin 15 degree. With increasing theta, cos theta decreases, so cos 37 will be less than cos 15 degree. यहाँ तक का काम फटाफट बन गया. आगे sin 37 cos 15, तो ऐसे करते हैं ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑप्शन सी के लिए cos 15 is equal to sin 90 minus 15, you know, and 90 minus 15 is coming out to be 65. 90 minus 16 is coming out to be 65, so it is sin 65. तो अगर हम cos 15 को sin 65 लिख देंगे, क्या मिलेगा, sin 37 और ये मिलेगा sin 65. cos 15 की जगह sin 65 लिख दिए. अब बड़ा एंगल तो ज्यादा वैल्यू, Sir, sin 60. तो sin 65 is more, मतलब what is more, here this sin will be this is more. इसमें से ये बड़ा था, इसमें से ये बड़ा था, इसमें से ये बड़ा हो गया. अब now the last one, again sin 15 is equal to we have seen, और sin 15 is equal to क्या हो जाएगा ऑप्शन डी के लिए, sin 15 is equal to cos 90 minus 15, that is cos 65. ओहो, so sin 15 is same as cos 65. cos 65 है, तो ये cos 65 is always, so sin 15 that is equal to cos 65, that is always less than cos 37, है कि नहीं? ये क्योंकि ये हो गया, हाँ, तो ये हो जाएगा ऐसे, it will be coming out to be something like this. तो ऐसे करके उल्टा पुल्टा लॉजिक ब्रेन लगाना पड़ेगा. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग समझ गए हैं. कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए ये वैल्यूज मालूम है, हम इनको याद रखेंगे. हमें याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, जैसे फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा. थीटा का वैल्यू 0 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, और भी आगे हो सकता है, लेकिन इतना हम लोग याद रखेंगे. और वैल्यूज क्या होंगे फॉर दिस वैल्यूज ऑफ थीटा, व्हाट विल बी द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा. साइन थीटा होगा 0, ये होगा 1/2, 45 में होगा 1/√2, इसमें होगा √3/2, इसमें होगा 1. एक को याद रखना, दूसरा उल्टा हो जाएगा, इधर से 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन कभी कभार याद नहीं रहता ना, तो थोड़ा आपको निकालना पड़ेगा. 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. I'll tell you some clue how to find out. कैसे इसको याद रखना है, कैसे याद रखना है, दूसरा ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, बट हाउ ऑल दिस वैल्यूज आर कमिंग, वो दूसरी चीज है.
इसको तो डिफरेंट रेशियो से कैलकुलेट करके निकाला गया है। लेकिन अगर आपको एकदम कुछ भी याद नहीं है, ओनली यू नो दीज एंगल्स, हाउ टू फाइंड, आई एम मेकिंग इट। यू सी, थीटा ले लिए 0, 30, 45, 60 एंड 90, और साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। आप ऐसे करो, यू जस्ट राइट 0, 1, 2, 3, 4, इसमें उल्टा लिखो 4, 3, 2, 1, 0, हो गया ना। अब हर एक में 4 डिवाइड कर दो, हर एक में 4 डिवाइड कर दो, हर एक में 4 डिवाइड कर दो। ठीक है, कर दिए, 4 डिवाइड कर दिए, 4 डिवाइड कर दिए, हर एक का रूट ओवर ले लो। लो, आपकी वैल्यूज आ गए, देख लो। अब यही तो वैल्यूज है जो आप ऊपर लिखे हो, देख लो, यही वो वैल्यूज है। अब देखोगे, जैसे ये रूट ओवर ऑफ 1/4 क्या हुआ, 1/2, ये है। रूट ओवर ऑफ 3/4 क्या हुआ, √3/2 वो है। सो इट इज इजी टू रिमेम्बर दिस वे बिगनिंग में। लेकिन बाद में तो आपको कोई टेक्निक नहीं है, सीधे रट्टा मार के इसको याद रखना पड़ेगा। इतना फ्रीक्वेंट यूज होगा दिस वैल्यूज का कि हर बार ऐसे निकाल कर आप नहीं कर पाओगे। जैसे 2, 3 टेबल आपको याद रखना पड़ता था, कोई मल्टीप्लिकेशन आइडिया लगा के निकाल के कर लोगे तो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन इतना यूज होता है कि बार बार उस आइडिया से फंडामेंटल से करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। सो शुरू में याद रखने के लिए आप ये वैल्यू को रट्टा मारना है। ये वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 है ना, और ये 0, हाफ, 1/2, √3/2, 1, उसका उल्टा करो तो cos थीटा आता है। यू सी, sin 30 is same as cos 60, cos 60, ये sin 60 is same as cos 30, sin 45 is same as cos 45, all things go like this। ये वैल्यूज को आपको, डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। Yes sir। जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको पूछूंगा कि बताओ क्या है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आई एम गिविंग यू ए स्मॉल क्वेश्चन, से दिस लेंथ इज गिवन 6 एंड और दिस लेंथ इज गिवन, कोई एक ट्रायंगल में दिस लेंथ दिया है सपोज 12, ठीक है, और ये एंगल दिया है मान लो कि 30 डिग्री। कोई एक ट्रायंगल में दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है। जस्ट ए क्वेश्चन, एनी ट्रायंगल ABC, two sides are given and the angle between them is also given. Find area of triangle। तो हम मान लो कि जनरलाइज कर लेते हैं, ये साइड को A कह लेते हैं, ये साइड को हम कह लेते हैं कि ये हो गया आपका B, और चलो मान लेते हैं कि एंगल थीटा। ये ट्रायंगल का एरिया निकालो, ऐसे करके दिया। ABC लिखने से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन फिर से होगा, क्योंकि आपके पास बेस है, बेस P, एक साइड है P, दूसरे साइड है Q, एंगल है थीटा। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे करके अगर पूछेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। Now I want to find out the area of this triangle. What a big thing, nothing. See, let me find out the base and the height. Base is already given, Q, and height, if I can find out this, call this as R। अगर ये हमें मिल जाएगा तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। चलिए, ये पॉइंट को कोई एक पॉइंट D नाम दे देता हूं। I want to find out what is this height R। Now you see clearly in ABD triangle, what is sin theta? Sin theta, this will be base, this will be perpendicular, this will be hypotenuse, you see it is R by P, नहीं? तो फिर R क्या हो गया, R is P sin theta, ठीक है। अरे P Q ये सब लिखने से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं तो बाद में, क्योंकि आप पूरा कंफ्यूज कर जाओगे। थोड़ा मैं वैल्यूज में बदलना चाहता हूँ। चलो ये मानते हैं कि ये लेंथ है x, ये लेंथ है y, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ इट इज r बाई x। अच्छा, तो x क्या, r क्या हो गया, इट इज x sin थीटा,
ओहो, तो हाइट पता चल गया। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, है ना। अब ये बेस कितना है? बेस से वाई, हाइट कितना है? एक्स साइन थीटा, सो हाफ एक्स वाई साइन थीटा। तो what you understand out of it that if x and y are the two sides of any triangle and the angle enclosed by them is theta, then the area is half xy sin theta। उनका एरिया हो जाएगा हाफ xy sin theta, Yes, sir. है ना। कितना सिंपल। अगर x और y के बीच में 90 डिग्री हो गया, मतलब ऐसा हो गया, ये x है ये y है, साइन 90 कितना है? साइन 90 इज 1। एरिया क्या होता था? हाफ एक्स वाई, है ना। तो ऐसे करके आपको काफी कुछ चीजें अभी करने के लिए मिल जाएगा। आई विल गिव यू द वीडियोस, जस्ट गो थ्रू देम।